Student, this is lecture number 5 on atomic physics related with Sommerfeld elliptic orbit theory. This is also very important question from Kurukshetra University exam. Question is show that A is equal to n square A1 over Z and prove that total energy does not depend on azimuthal quantum number. Symbols have their usual meaning. A1 is symbol of Bohr radius whose value is 0.53 angstrom. N जो है that is total quantum number which is sum of radial quantum number and azimuthal quantum number. Z as usual I used to say atomic number. A जो है that is semi major axis of elliptical orbit suggested by Sommerfeld. How to work out this question? We must know that for a given value of principal quantum number n, the higher possible of orbital quantum number L is n-1. You know L की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0, 1, 2, 3 etc up to n-1. Obviously we can have 4d, 5f, 2p and 2s, but 1p, 2d, 3f electrons do not exist. I also told you small alphabet always stands for electron. When I say small p, that means p electron. When I say capital P, that means capital P mean energy state, small d mean electron, capital D mean energy state. और एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन मैंने आपको बताया था, याद होगा, 0, 1, 2, 3. अगर L की वैल्यू है तो L 0 मीन S, 1 मीन P, 2 मीन D, 3 मीन F. ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है स्टैंडर्ड. S का मतलब होता है शार्प, P मीन प्रिंसिपल, D मीन डिफ्यूज, F मीन फंडामेंटल. और हायर पॉसिबल L वैल्यू इज n-1. अब मैंने ये क्यों कहा कि 1p डज नॉट एग्जिस्ट? व्हाई? बिकॉज ये p से जो पहले होता है दैट स्टैंड फॉर n वैल्यू. n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू कितनी है? p में L की वैल्यू कितनी है? 1. और हायर L की वैल्यू क्या लिखी हुई है मैंने? n-1. तो ये देखिए 1, तो 1-1 कितना हो गया? 0. तो हायर ही L वैल्यू 0 है और मैं लिख रहा हूं L की वैल्यू 1. तो दिस इज रूल्ड आउट. कई बार कंपल्सरी क्वेश्चन में आते हैं 1p इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट. व्हाई? इसी तरीके 2d इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट. व्हाई? क्योंकि दिस इज n और d के लिए L की वैल्यू 2 होती है और n की वैल्यू 2 है तो हायर पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? 2 - 1 इज व्हाट? 1. और मैं 1 हायर वैल्यू है और मैं कह रहा हूं L की वैल्यू 2. इसको ये भी रूल्ड आउट है. तो दिस नोटेशन शुड बी फेमिलियर. So these are spectroscopic notations and K is a symbol meant for azimuthal quantum number. मैंने उस दिन भी आपको बताया था K की जो मिनिमम वैल्यू है, K की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती. K की लीस्ट वैल्यू जो है that is 1. हायर वैल्यू ऑफ K is n. K की जो पॉसिबल परमिसिबल वैल्यू है 1, 2, 3 अप टू n है और n जो है that is total quantum number which is sum of R and K. K by n is equal to B over A. K is Sommerfeld azimuthal quantum number, n is principal quantum number, B semi minor length, A is a semi major length. And this ratio I proved in lecture number 4 atomic physics. And ये भी क्वेश्चन कई बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है. Derive this quantum condition for allowed Sommerfeld elliptic orbit. R की वैल्यू जो है n-k है यहां से. सो कोरस्पॉन्डिंग परमिसिबल वैल्यूज ऑफ लिटिल r आर. K की वैल्यू 1 तो n-1, फिर K की वैल्यू 2 तो n-2, K की वैल्यू 3 n-3, लास्ट में K की वैल्यू n तो n-n is 0. द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लिटिल l स्टैंड फॉर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. L की पॉसिबल परमिसिबल वैल्यू है 0, 1, 2 अप टू n-1. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ B ओवर A, यहां से अब B ओवर A की पॉसिबल वैल्यू क्या आएंगी? K की वैल्यू कितनी है देखो 1, तो 1 ओवर n. फिर नेक्स्ट वैल्यू K की 2 ओवर n. फिर नेक्स्ट वैल्यू 3 ओवर n एटसेट्रा. लास्ट वैल्यू K की वैल्यू n तो n ओवर n, यानी B ओवर A की जो लास्ट वैल्यू है दैट इज 1. टू सी वेदर द स्प्लिटिंग अप ऑफ ऑर्बिट्स लीड्स टू न्यू एनर्जी लेवल्स और नॉट. To see whether the splitting up of orbits leads to new energy levels or not. Let us work out total energy, जिसका सिंबल मैंने E suffix n दिया था या W, corresponding to principal quantum number n.
Now total energy of atom with single electron in an elliptical orbit is E suffix n equal to W. Total energy is denoted by E suffix n or it is denoted by W. I told you different books use different nomenclature, different normalization. किसी बुक में एनर्जी का सिंबल E है, किसी बुक में W है. So total energy is always kinetic energy due to electron plus potential energy. और आपको पता है टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सम ऑफ दिस टू. सोमरफेल्ड थ्योरी है. बोहर ने तो कहा था इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, बट बोहर की कई लिमिटेशंस है जिसको ओवरकम किया सोमरफेल्ड एलिप्टिकल थ्योरी ने. सोमरफेल्ड ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन डोंट मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, रादर मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट इनफाइनाइट, दैट इज finite mass of nucleus. So these things should be kept in your mind while growing the subject atomic physics. So since velocity has both radial component as well as transverse component, वो ellipse की जो डायग्राम मैंने एटॉमिक फिजिक्स में थर्ड लेक्चर में, अब वो एलिप्स की डायग्राम दिमाग में हर वक्त होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर है. लिटल r इलेक्ट्रॉन possesses two velocity. एक तो थी रेडियल वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय r डॉट, एक थी ट्रांसवर्स वेलोसिटी विच इज r इंटू फाई डॉट. फाई डॉट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा यानी डी फाई बाई डी टी. ये डॉट जो नोटेशन है ये टाइम ऑर्डर डेरिवेटिव है. r डॉट का मतलब डी आर बाई डी टी, फाई डॉट का मतलब डी फाई बाई डी टी. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. और ये 1/4 पे एप्सिलॉन 0 को मैंने वैसे तो k बोला था, लेकिन अभी मैं पढ़ाते वक्त ये सोच रहा था k तो मैंने ऑलरेडी सिंबल यूज किया, so it may lead to confusion. So in order to avoid confusion, so I have used symbol, different symbol. K as K I have already chosen. K stand for azimuthal quantum number. अगर मैं यहाँ पे भी K ले लेता तो you could have misled कि ये वो वाला K है या ये, but this K is different. 1/4 पे epsilon 0 जो है that is K dash, that is electrostatic force constant whose standard value you know 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. स्टूडेंट टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर. ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई सिस्टम की. सिस्टम को बनाने वाला कौन है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. छोटी चीज बड़ी चीज के इर्द गिर्द घूमती है, बड़ी चीज नहीं. हालांकि यहाँ पे तो दोनों मूव कर रहे हैं अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी. और न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा था उस ऑर्बिट में जिसका रेडियस a1 है. इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उस ऑर्बिट में जिसका रेडियस a2 है, और a1 a2 का टोटल सम a था. अब ये देखिए ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी. और तो ये मैंने क्या किया, अब अपस्टेयर में भी m से मल्टीप्लाई किया और डाउनस्टेयर भी है. छोटा सा ट्रिक है, m से नीचे मल्टीप्लाई m से ऊपर. ये देखो m स्क्वायर आ गया, m स्क्वायर आ गया, और ये नीचे भी m था, नीचे भी m था. हाफ m मैंने कॉमन ले लिया, यानी 2m मैंने डाउनस्टेयर में कॉमन ले लिया. ये आ गया माइनस जेड लिटिल ई स्क्वायर k डैश और लिटिल r. सो 1/2m इंटू m स्क्वायर r डॉट स्क्वायर. ये m स्क्वायर r स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, अनदर वे ऑफ राइटिंग mr फाई डॉट mr फाई डॉट. अब फिर एक जगलरी है, r स्क्वायर से r स्क्वायर को डाउनस्टेयर में लिखा, r स्क्वायर को अपस्टेयर में लिखा, और ये आ जाएगा. तो 1/2m इंटू, आप जानते हैं कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, एक r थी एक फाई डॉट था. r के एसोसिएट जो मोमेंटम था p सफिक्स r विच इज रेडियल मोमेंटम. रेडियल मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियल वेलोसिटी mr डॉट. mr डॉट की प्रोडक्ट p सफिक्स r है. और ये जो r स्क्वायर है, अब यहां ध्यान से देखना, जरा मेरी बात को ध्यान से देखिए, ये r स्क्वायर है. r स्क्वायर मीन r इंटू r. एक r को मैंने यहां लिख दिया, एक r को मैंने यहां लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा? mr स्क्वायर फाई डॉट. ये क्या बन जाएगा? mr स्क्वायर फाई डॉट. mr स्क्वायर फाई डॉट इज एंगुलर मोमेंटम, अजीमुथल एंगुलर मोमेंटम विच इज p सफिक्स फाई. ये भी p सफिक्स फाई. ये r स्क्वायर एब्सॉर्ब हो गया. r स्क्वायर मीन r यहां आ गया, r यहां पे आ गया. mr स्क्वायर फाई डॉट इज p सफिक्स फाई. mr स्क्वायर फाई डॉट इज p सफिक्स फाई. तो कितना हो गया? p सफिक्स फाई स्क्वायर, और ये r स्क्वायर डाउनस्टेयर में, और ये माइनस एज इट इज ये टर्म आ जाएगी. अब ये जो लेक्चर्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. तो यहाँ पे p सफिक्स r और p सफिक्स फाई में मैंने रिलेशन डिराइव किया था इन लेक्चर नंबर 4, एटॉमिक फिजिक्स लेक्चर नंबर 4. यूट्यूब पे आप वो लेक्चर देखेंगे. अब ये डिराइव दोबारा करना पॉसिबल नहीं है. वैसे भी ऑनलाइन टीचिंग में जो इट्स नॉट पॉसिबल टू
रिकैप्चुलेट द थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो ये लेक्चर 4 से है। ऐसे ये जो है सोमरफेल्ड इलिप्टिक ऑर्बिट की थ्योरी, ये भी मैंने आपको प्रूव किया था जब मैंने सोमरफेल्ड इलिप्टिक ऑर्बिट डिजाइन किया था। इसी प्रकार से ये इक्वेशन भी हमने लेक्चर 4 में डिराइव की थी, क्योंकि ये इक्वेशन आगे इस आर्टिकल को मेरे को इसमें यूज करनी है। तो इसलिए इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर 4 में जो इक्वेशन, तभी मैं आपको कह रहा था साथ साथ नोट्स बनेंगे, क्योंकि एक लेक्चर की क्वेश्चन अगले लेक्चर की क्वेश्चन के साथ कनेक्ट होती है। तो प्लीज jot down the thing, have memorandum of those things which I used to tell in the lectures। तो मैं अभी इसको फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। स्टूडेंट, टोटल एनर्जी W is equal to kinetic energy plus potential energy। potential energy is always negative, kinetic energy is always positive। अभी मैंने ये आपको बताया था। K dash जो है I have used symbol in order to avoid confusion, क्योंकि K जो है that is Sommerfeld azimuthal quantum number and K dash is 1/4 pi epsilon 0। और ये मैंने आपको कहा था वीडियो जो है 4th वीडियो में ये क्वेश्चंस मैंने डिराइव करी हुई है, क्योंकि इनका मैंने यूज करना है। तो W किसके बराबर हो जाएगा 1/2m। ये P सफिक्स R इज रेडियल मोमेंटम, P सफिक्स phi इज अजीमुथल एंगुलर मोमेंटम। इस P सफिक्स R की वैल्यू को यहां से उठा के, ये वैल्यू यहां से उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए। देखो P सफिक्स R स्क्वायर, तो P सफिक्स phi स्क्वायर dr/d5 होल स्क्वायर 1/, ये R स्क्वायर है, चूंकि ये स्क्वायर है तो R स्क्वायर का स्क्वायर, ये एज इट इज, ये एज इट इज। तो W टोटल एनर्जी विच इज 1/2m, मास m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये P सफिक्स phi स्क्वायर और R स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लिया इन प्लेस ऑफ इट यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r dr/d5 होल स्क्वायर, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं r स्क्वायर r⁴ dr/d5 होल स्क्वायर इज विद यू, P phi स्क्वायर इज विद यू, और ये एज इट इज। देन W इज इक्वल टू P सफिक्स phi स्क्वायर ओवर 2m इनटू, अब ये देखो ये 1/r आ गया, 1/r। तो ये वैल्यू मुझे यूज करनी है। सोमरफेल्ड इलिप्टिक ऑर्बिट जब मैंने डिजाइन किया था तो ये लिखा था। तो 1/r की जो ये वैल्यू है ये पूरी, ये मैंने यहाँ पे इनको 1/r का स्क्वायर यानी ये आ गया। फिर उसके बाद है 1/r dr/d5। यहाँ 1/r की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करें, नोट करें स्टूडेंट, 1/r dr/d5 की वैल्यू वो भी मेरे पास है, तो ये मैंने 1/r dr/d5 की वैल्यू यूज कर ली। +1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर जेड, ये K डैश, फिर 1/r की ये वैल्यू मैंने इनकॉर्पोरेट करी। सो देयरफॉर W टोटल एनर्जी इक्वल टू P सफिक्स phi स्क्वायर ओवर 2m, ये a स्क्वायर इनटू 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिटिल ई इज एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, और ये 1 प्लस लिटिल ई cos phi का होल स्क्वायर, ये लिटिल ई स्क्वायर sin स्क्वायर phi, ये एलसीएम आ गया, ये 1 के साथ इधर चला गया, और a प्लस b का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये एज इट इज है। सो देयरफॉर W यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू P सफिक्स phi स्क्वायर और 2m a स्क्वायर इनटू 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब ये देखो ये वाली चीज कैंसिल हो गई स्टूडेंट, अपस्टेयर में भी यही चीज है, डाउनस्टेयर में भी ये, तो ये कैंसिल हो गया। और ये जो है लिटिल ई स्क्वायर कॉमन इनटू sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi इज 1, ये +1 एज इट इज प्लस 2 लिटिल ई cos phi माइनस ये चीज आ गई। So therefore this is P suffix phi square और 2m a square into 1 minus little e square का whole square। अब ये देखो sin square phi plus cos square phi is 1, तो ये little e square ये +1 और ये प्लस 2 little e cos phi। अब मैंने क्या किया, इस कर्ली ब्रेसेस में से ये 2 कॉमन लिया मैंने जबरदस्ती, जब मैंने 2 कॉमन लिया तो ये आ गया, और क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था तो ये डाउन स्टेयर में आ गया, क्योंकि अगर ओपन करोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये देखो ये 2 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया। ये वाली टर्म तो एज इट इज आ रही है पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन को दोबारा यूज करना है, तो आई एम कॉलिंग दिस रिलेशन नंबर ए, क्योंकि आई एम टू यूज इट अगेन। नाउ यू नो, ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज किया था बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और वो जो है कूलम फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। एंड फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम total energy stays constant, remains constant। So यानी total energy is nothing to do with azimuthal angle phi, यानी total energy is independent of phi।
सो इस पूरी जो इक्वेशन जो है टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इसमें cos फाई का जो कोफिशिएंट है दैट इज मेड इक्वल टू 0, क्योंकि तभी तो ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। टोटल एनर्जी इन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी W को cos फाई पे डिपेंड नहीं करना। इसका cos फाई का कोफिशिएंट जो है दैट इज मेड इक्वल टू 0। यहाँ पे cos फाई का आपने सिर्फ इस एक्सप्रेशन में cos फाई के कोफिशिएंट देखने हैं। cos फाई एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, यहाँ पे cos फाई का कोफिशिएंट क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो cos फाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, p सफिक्स फाई स्क्वायर लिटरली डिवाइडेड बाई m स्क्वायर इंटू 1 माइनस लिटरली स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इधर cos फाई का कोफिशिएंट क्या आएगा, ये देखो ये माइनस है, तो क्योंकि मैंने कोफिशिएंट cos फाई के 0 कर दिया, तो ये cos फाई का कोफिशिएंट माइनस ये कोफिशिएंट इक्वल टू 0, तो माइनस उधर जाके प्लस हो गया। और यहाँ पे cos फाई का कोफिशिएंट क्या आएगा, लिटरली, और ये लिटल ई स्क्वायर, लिटरली स्क्वायर, ये देखो लिटरली स्क्वायर k डैश जेड, डाउनस्टेयर में a इंटू 1 माइनस लिटरली स्क्वायर, तो लिटरली अपेयरिंग ऑन लेफ्ट अपेयरिंग ऑन राइट अपस्टेयर में कैंसल। Therefore ये a जो है एक तरफ इधर से कैंसिलेशन होगी, ये पावर 1 आ गई यहाँ पे, तो a मैं इधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, p सफिक्स फाई स्क्वायर, और ये a तो ये इधर चला गया, a की वैल्यू इधर आ गई, तो ये क्या आ जाएगा, p सफिक्स फाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई k डैश लिटल ई स्क्वायर, m तो पहले ही है, ये a इधर आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये m और ये k डैश लिटल ई स्क्वायर जेड, और ये इसी तरीके से ये पावर 1 है, ये पावर 2, ये भी एक पावर कम हो गई यहाँ पे। स्कूल अलजेब्रा सिंपली तो रीअरेंज किया, तो ये एक इन दोनों से a की वैल्यू ये आ गई, इसको मैंने कॉल कर दिया b, क्योंकि मुझे यूज करना बाद में। स्टूडेंट याद होगा आपको, एक मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन बताई थी, फर्स्ट इंटीग्रल एंड सेकेंड इंटीग्रल। सेकेंड इंटीग्रल था साइक्लिक इंटीग्रल p सफिक्स फाई डी फाई is equal to k into h. h is Planck constant, k is azimuthal Sommerfeld quantum number, और जब ये सर्कुलेशन हटती है तो लिमिट 0 से 2 पाई, और मैंने आपको कहा था p सफिक्स फाई जो है एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, नेम द लॉ व्हिच लीड्स टू केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन डिमांड्स की p सफिक्स फाई कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 2 पाई, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, तो फिर p सफिक्स फाई इंटू 2 पाई माइनस 0 इज इक्वल टू kh, तो p सफिक्स फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, kh और 2 पाई, इसको कॉल कर दिया c। सोमरफेल्ड कंडीशन फॉर एलिप्टिक ऑर्बिट, ये आप जानते हैं एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है एलिप्स में, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इज 1 माइनस लिटल ई स्क्वायर। ये मैंने आपको सोमरफेल्ड की एक कंडीशन अलाउड ऑर्बिट्स के लिए क्वांटम कंडीशन डिराइव की थी, बी ओवर ए इक्वल टू के ओवर एन, याद होगा बी ओवर ए इक्वल टू के ओवर एन, समझते हो ना स्टूडेंट, बी ओवर ए इक्वल टू के ओवर एन, तो स्केलिंग बोर्ड से तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर और एन स्क्वायर, एन जो है दैट इज सम ऑफ के एंड आर, तो के स्क्वायर और के प्लस आर का होल स्क्वायर। और A1 जो है मैंने आपको कहा ये बोहर यूज होता है, A1 इज बोहर रेडियस, यानी बोहर रेडियस का मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस, तो विच इज h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक चार्ज एट प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आगे मैंने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग c, इस c की वैल्यू को मैंने b में इनकॉर्पोरेट किया, यानी p सफिक्स फाई को यहां पे रख दिया, तो a जो है सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि यही तो मुझे प्रूव करना है, आज का आर्टिकल क्या है, a और b की वैल्यू प्रूव करो कि a जो है दैट इज, a को हमने प्रूव करना है n स्क्वायर a1 और z, और b को हमने प्रूव करना है a1 इंटू एन के और z। हाउ टू प्रूव, वही तो आज का लेक्चर है, और ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। तो बस डेरिवेशन लगभग कंप्लीट है, तो a यानी सेमी मेजर एक्सिस, ये p सफिक्स y की वैल्यू यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया, डेरिवेशन को स्टेप्स में याद रखिए, और p सफिक्स फाई की वैल्यू जो है यहाँ पे आ गई, तो ये k स्क्वायर h स्क्वायर और ये 4 पाई स्क्वायर, ये k डैश लिटिल m e स्क्वायर z, और ये 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर। अब देखो ये 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर की वैल्यू ध्यान देखना है ध्यान से,
1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर की वैल्यू ये है, देखो 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर क्या, के स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो ये देखो 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर की जगह के स्क्वायर और एन स्क्वायर, एन स्क्वायर ऊपर चला गया, ये के स्क्वायर अपस्टेयर और डाउनस्टेयर में कैंसिल हो गया। Therefore semi major axis is equal to n square h square over 4 pi square m e square z। अब आपको ये 1 और k डैश, क्योंकि स्टूडेंट k डैश की वैल्यू जो थी k डैश वाज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1 बाई k डैश क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और दिस इज नोन टू यू, दिस इज व्हाट, दिस इज a1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी n स्क्वायर a1 ओवर z। अब ये तो ए का प्रूफ हो गया, वन जॉब वी हैव कंप्लीटेड। नाउ अनदर टास्क इज टू वर्क आउट वैल्यू ऑफ सेमी माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स यानी बी। तो वो सोमरफेल्ड क्वांटम कंडीशन फॉर अलाउड एलिप्टिक ऑर्बिट, ये तो अपन को पता है बी ओवर ए इज के वाई एन, क्रॉस मल्टीप्लाई बी की वैल्यू ए इंटू के वाई एन। अब ए की वैल्यू तो आपके पास है, बस ये ए की वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर दीजिए और आगे के वाई, बस मेजर जो टफ वर्क है वो है ए की वैल्यू वर्कआउट करने का। बी की वैल्यू तो हमें सीधा ही आ जाएगा इस रिलेशन से, ये तो रिलेशन हमेशा माइंड में रहता है, दिमाग में रहता है। दिमाग में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बी ओवर इक्वल टू के वाई एन, इस चीज को तो आप रट लो बस, बी वाई इक्वल टू के वाई एन। तो बी की वैल्यू ए इंटू के वाई एन और ए की वैल्यू ये है एन स्क्वायर ए वन ओवर जेड और साथ में के वाई एन, तो ये एन स्क्वायर और एन एक एन आ जाएगा, ये a1 एज इट इज, के एज इट इज, जेड एज इट इज। तो बी वाली भी डेरिवेशन होगी, यानी 2 डेरिवेशंस वी हैव डन, ए एंड बी। अब मेरे को लास्ट में ये प्रूव करना था, एक और भी क्वेश्चन अटैच था, 8 नंबर का क्वेश्चन सीधा आता है, शो दैट टोटल एनर्जी इन एलिप्टिकल ऑर्बिट डज नॉट डिपेंड ओनली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। तो उसको प्रूव के लिए हमें बस ये रिलेशन ए है, इसको 3-4 स्टेप्स में वो प्रूफ हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने आपको कहा था मुझे ए इक्वेशन टोटल एनर्जी वाली दोबारा यूज करनी है, इसलिए मैंने इसको ए कॉल कर दिया था, क्योंकि दोबारा तो मैं प्रूव नहीं करूंगा। डब्ल्यू के एक्सप्रेशन को जहां पे मैंने रोका था इसको दोबारा लिख दिया, री राइटिंग ए। आप देखो डब्ल्यू का एक्सप्रेशन क्या है, जहां 2 से 2 कैंसिल था, टी सफिक्स 5 स्क्वायर और एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये कर्ली ब्रेसेस वाला और ये वाली चीज एज इट इज। यही तो इक्वेशन नंबर ए था जिसको मैंने अभी यूज करूंगा। तो स्टूडेंट रिलेशन बी था, ए की वैल्यू मैंने आपको पहले भी लिखा था, एक रिलेशन ए था, एक बी था और एक सी था। बी तो ये था, इसको मैंने यूज करना है ए में। टोटल एनर्जी डब्ल्यू का ये एक्सप्रेशन है। अब ये देखो ये ए स्क्वायर है, तो इसको मैंने ए इंटू ए लिख दिया है, 1 बाई ए, तो ये देखो बाहर आ गया, ए के अंदर है, ए इंटू ए स्क्वायर, तो 1 बाई ए आगे, तो ये पी सफिक्स 5 स्क्वायर और एम ए आ गया इंटू 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रेसिस माइनस के डैश लिटिल ई स्क्वायर जेड इंटू 1 प्लस लिटिल ई कोस फाई और ए इंटू 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर। पूरी इस समीकरण को कॉल कर दिया डी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। नो व्हाट शैल आई डू, आई शैल यूज बी इन डी। तो इस ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इस ए को तो मैंने एज इट इज रखा, इस ए की जगह ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, इस ए की जगह, तो ए की जगह ये आ गया पी सफिक्स 5 स्क्वायर, ये अब ऊपर चला गया, कर्ली ब्रेसिस 1 प्लस लिटिल ई स्क्वायर बाई 2 प्लस लिटिल ई कोस 5 माइनस ए एज इट इज और इसके ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो ये 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर, ये 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर को होल स्क्वायर, एक पावर कम हो गई, बाकी एज इट इज। therefore w is equal to k प्राइम और ये k प्राइम इंटू लिटिल ई स्क्वायर, ये k प्राइम लिटिल ई स्क्वायर जेड और k प्राइम, ये वाली चीज कॉमन ले रहा हूं मैं, ये देखो k प्राइम लिटिल ई स्क्वायर जेड और ये 1 माइनस ई स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन निकल गया, k डैश लिटिल ई स्क्वायर जेड, ये a तो है ही है, और ये 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर कॉमन, तो इधर ये कॉमन आ गया तो इधर ये बच गया, और बाहर माइनस था तो अंदर ले साइन चेंज हो गए। इधर क्या आ जाएगा, ये p सफिक्स 5 स्क्वायर कैंसल, m से m कैंसल, और ये कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा, ये सारी चीज कैंसिल ही हो गई है, मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस लिटिल ई स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये लिटिल ई स्क्वायर जेड k डैश, ये 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर कॉमन आ गया क्योंकि ये कट जाएगा, m से m कैंसिल, p5 स्क्वायर से p5 स्क्वायर कैंसिल, ये सारा हिसाब हो गया।
ये एज इट इज वही माइनस अंदरले साइन चेंज हो गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गए। सो दिस इज एलसीएम लिया तो 1 प्लस लिटिल ई स्क्वायर -2/2, -2 + 1 इज -2 + 1 माइनस मैंने कॉमन ले लिया, -2 + 1 इज -1, तो -1 प्लस लिटिल ई स्क्वायर वो माइनस कॉमन ले लिया, तो आप देखिए टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन नेगेटिव आ गया। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव, टोटल एनर्जी इज नेवर पॉजिटिव, टोटल एनर्जी इज एवर नेगेटिव। सो ये 1 माइनस लिटिल ई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, और a की वैल्यू अभी जस्ट मैंने प्रूव की थी n स्क्वायर a1/z, और a1 बोहर रेडियस था, वो वैल्यू मैंने लिखी थी, वो सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये a की वैल्यू आ गई। आपको पता 4 पे एप्सिलॉन 0 क्या था 1/k डैश, ये a की वैल्यू जो है यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो a की, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा -k डैश, ये a की वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये k डैश नीचे ऊपर चला गया तो k डैश का स्क्वायर, ये लिटिल ई स्क्वायर, और ये z है a ये ऊपर चला गया z स्क्वायर, 4π² m स्क्वायर ऊपर चला गया ओवर 2, और ये a की वैल्यू तो मैंने सब्स्टिट्यूट की है n² h²। सो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी -k डैश स्क्वायर लिटिल ई 4 z स्क्वायर, और ये 2 ने इस 4 को काट दिया कितने से 2 से, तो 2π² लिटिल m और n² h²। तो देखिए टोटल एनर्जी में k नहीं आया, यानी टोटल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन के, टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में सोमरफेल्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर है ही नहीं है, इसीलिए हमने कह दिया टोटल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन के, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन एन। तो सोमरफेल्ड थ्योरी में भी यही प्रूफ हुआ, बोहर थ्योरी में भी यही प्रूफ हुआ, यही मैंने प्रूव करना था। थैंक यू।